Hello everyone, I am Dr. Sarika Jaiswal, practicing gynecologist and laparoscopic surgeon in इंदौर। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट लम्प यानी स्तन की गठान के बारे में। ब्रेस्ट लम्प महिलाओं और पुरुषों दोनों में हो सकता है, बट इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स। तो ब्रेस्ट लम्प समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट की संरचना क्या है, ब्रेस्ट कैसे बनता है। ब्रेस्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ like milk glands, milk ducts, fibrofatty tissue, nerves, blood vessels, and lymph nodes. So breast lump can arise from any of these tissues. First of all, मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ कि most of the breast lumps, 80% of the breast lumps are not cancerous. They are benign. They are harmless. So if you feel any lump in your breast, don't get panic. And just consult a gynecologist or a dedicated breast surgeon. अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन नॉन कैंसरस ब्रेस्ट लम्प्स कौन से हैं। सो मोस्ट कॉमन नॉन कैंसरस ब्रेस्ट लम्प्स आर फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस, ब्रेस्ट एब्सिस, ब्रेस्ट सिस्ट, लाइपोमा, इंट्राडक्टल पैपिलोमा, डक्ट एक्टीजिया, फैट नेक्रोसिस जो कि ट्रॉमा या इंजरी की वजह से हो सकती है। व्हाट आर द डेंजर साइंस, हमें वरी करने की ज़रूरत कब है। दीज आर, यदि आपका लम्प एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द लम्प्स जो बिनाइन होते हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं या दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। दूसरा, इफ़ द ब्रेस्ट लम्प इज़ पेनलेस। थर्ड, if it is associated with blood mixed nipple discharge. Fourth, the skin changes on your breast. It is typical orange peel like skin due to edema. Lump in the armpit and recent changes in the size or shape of your one breast, and it is sudden, it is not gradual. So these are the danger signs that you have to notice. It is important to be familiar with your breast. You should know what the normal breast look like and what the normal breast is felt. For this, self breast examination is necessary. That means you must be aware of your breast. How this breast examination is done? There are few steps of this. First, you have to stand out in front of the mirror. शीशे के सामने खड़े होना है and just look in the mirror for the size, shape, color and any visible lump. कोई गठान आपको बाहर से ही दिख रही है। Then raise your arms, आपके हाथ ऊपर करिए और हाथ ऊपर करने के बाद में जो आपने फर्स्ट स्टेप में देखा है उसे वापस देखने की कोशिश करिए। Third step is check for any discharge from the nipples. You have to press the breast and areola and look for any discharge. It may be watery, it may be milky, it may be blood mixed. You have to notice that. Then you have to lie down and feel your breast with the firm hand. You have to feel each and every quadrant. The breast is divided into 4 quadrants. There are 2 upper and 2 lower. You have to feel 4 quadrants for any lump or for any pain. Then you have to feel again after sitting or in standing position. अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन नॉन कैंसरस लम्प्स के बारे में। सबसे ज़्यादा कॉमन ब्रेस्ट लम्प होता है फाइब्रोएडिनोमा। ये इसे मूविंग माउस भी कहा जाता है। इट इज़ राउंड एंड रबरी सॉलिड लम्प. The important feature is it is easily movable and the margins are smooth. The common age for this lump is 14 to 45, but it can occur in any of the age. And it is totally non-cancerous, so nothing to worry about it. But यदि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है या फिर कॉस्मेटिक कंसर्न है तो इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल रिमूवल होता है। एक छोटा सा चीरा लगा के इसे निकाल दिया जाता है। दवाइयों से ये ठीक नहीं हो सकता। सेकेंड मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट लम्प इज़ फाइब्रोएडिनोसिस। फाइब्रोएडिनोसिस जिसे फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज़ भी कहते हैं।
इसमें आपके ब्रेस्ट डेंस और नॉड्यूलर हो जाते हैं और टच करने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है. टिपिकल फीचर ऑफ फाइब्रोएडिनोसिस इज इट इज़ साइक्लिकल. द पेन इज totally vanished after you get your periods, and the treatment for this is usually the better breast support, painkillers. Sometimes we need to give birth control or contraceptive pills. Next most common breast lump is breast abscess. It is breast abscess ज़्यादा common होता है lactating breastfeeding mothers में, लेकिन ट्रॉमा की वजह से ये नॉन लैक्टेटिंग फीमेल्स में भी हो सकता है. इस लैक्टेटिंग मदर्स में ठीक से फीड नहीं कराने की वजह से दूध ब्रेस्ट में इकट्ठा हो जाता है, जिससे इनिशियली ब्रेस्ट हार्ड हो जाते हैं, एकदम रेड एंगॉज्ड हो जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है. यदि इस समय भी मिल्क को एक्सप्रेस नहीं किया और ट्रीटमेंट नहीं लिया तो मिल्क जो इकट्ठा हो गया है वह पस बन जाता है एंड इट इज़ नोन एज ब्रेस्ट एब्सेस. सो इन इनिशियल स्टेज यदि हम ट्रीटमेंट लेते हैं जिसमें कि आपको एंटीबायोटिक और पेन किलर्स दी जाती हैं और मिल्क एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाता है, तो यह ब्रेस्ट एब्सेस में कन्वर्ट नहीं हो पाता. लेकिन यदि एक बार ब्रेस्ट एब्सेस बन गया है तो ये दवाइयों से ठीक नहीं होगा. इट शुड बी ड्रेन्ड. हमें एक छोटा सा चीरा लगा के पस निकालना पड़ता है. नेक्स्ट कॉमन ब्रेस्ट लम्प इज ब्रेस्ट सिस्ट. It is fluid-filled sac beneath the skin, so it is felt like a rubbery lump in the breast, and common age is 30 to 50 years. The cause is not known, but mostly it is hormonal, and if it is increasing in size, यदि इसका साइज बढ़ रहा है तो इसे सिंपल एस्पिरेशन करके फ्लूइड निकाल दिया जाता है. अब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट लम्प में क्या टेस्ट कराए जाते हैं. देयर इज ट्रिपल असेसमेंट ऑफ दिस ब्रेस्ट लम्प. फर्स्ट इज योर डॉक्टर आस्क्स योर हिस्ट्री एंड ही और शी डज द एग्जामिनेशन ऑफ योर लम्प. सेकेंड, some imaging tests are done, and third, pathology is done. The doctor make the diagnosis by seeing your lump and by asking some history like कब से है, इसमें निपल में कोई डिस्चार्ज है क्या, इसमें पेन है या नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है क्या कोई ब्रेस्ट कैंसर की, और सडन चेंज कुछ हुआ है. फिर डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट के लिए कहता है जिसमें कि सोनोमेमोग्राफी और मेमोग्राफी करवाई जाती है. सोनोमेमोग्राफी इज सुटेबल फॉर पेशेंट्स हु आर लेस देन 40 ईयर्स, क्योंकि यंग एज में ब्रेस्ट जो होते हैं वो डेंस होते हैं. डेंस मीन्स उसमें ग्लैंड्स ज़्यादा हैं और फैटी टिश्यू कम है. मेमोग्राफी मतलब एक्सरे मेमोग्राफी 40 के बाद में सुटेबल होता है, क्योंकि तब ब्रेस्ट लेस डेंस हो जाते हैं, क्योंकि फैटी टिश्यू बढ़ जाता है और ब्रेस्ट मिल्क ग्लैंड्स कम हो जाते हैं. कभी कभी इसके एडवांस्ड इमेजिंग लाइक MRI और CT की ज़रूरत पड़ सकती है. एंड द नेक्स्ट टेस्ट इज़ बायोप्सी. मोस्टली फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी FNAC से ही डायग्नोसिस बन जाता है. द अदर बायोप्सीज आर कोर बायोप्सी, वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी, सर्जिकल बायोप्सी जिसमें कि पूरा लंप निकाल के उसको जांच के लिए भेजा जाता है. These are the different types of biopsies. कभी कभी डॉक्टर आपको जेनेटिक टेस्ट के लिए भी एडवाइस करता है, जिसमें कि BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स के लिए टेस्ट किया जाता है. इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यदि आपकी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है और यदि वो आपके रिलेटिव इन जीन्स के लिए पॉजिटिव थे, तो आप अपने खुद के लिए ये टेस्ट करवा सकते हैं. एंड इफ़ दीज जीन्स आर पॉजिटिव, दीज जेनेटिक चेंजेस आर पॉजिटिव एंड योर रिलेटिव वाज आल्सो पॉजिटिव फॉर दीज जीन्स, देन हम प्रोफाइलेक्टिक मतलब बिना लम्प के या बिना कैंसर के ब्रेस्ट रिमूव दैट इज़ मैस्टेक्टमी करवा सकते हैं. सोनोमेमोग्राफी रिपोर्ट में जो रिज़ल्ट दिया जाता है उसमें एक बिराट स्कोर के बारे में बात किया जाता है. तो उसको हम सिंपल शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि बिराट स्कोर 0 से 2 तक इट इज़ टोटली बिनाइन.
ज़ीरो का मतलब होता है कि डॉक्टर को और इमेजेस की ज़रूरत है, वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है. 1 इज़ नेगेटिव फॉर मैलिग्नेंसी, 2 इज़ ऑल्सो बिनाइन, एंड 3 is doubtful, that may need further tests like FNAC. 4 is suspicious of malignancy, जिसमें कि malignancy होने के chances ज़्यादा हैं and it has to be confirmed by biopsy. 5 is highly suggestive of malignancy. So this is the PIRAD score, which is written in sonomammography reports. Treatment of breast cancer is surgery. Second is radiotherapy, chemotherapy, hormone therapy, and combination of these. The best thing about breast cancer is the prognosis is very good if it is diagnosed in early stage. And in early stage, if surgery is done and after that if other modality like chemo or radio is given, then it is totally cured and the chances of recurrence is very rare. So the take home message is most of the breast lumps are benign. You should know how to do self breast examination and you should consult a doctor if you have any doubt. So I hope this video is helpful to you. Thank you so much.